आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां हम अपने पेशेंट्स की रियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बताएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक ही चुना। सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले पेशेंट निशांशु पाहवा से। आइए जानते हैं इनकी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इन्हीं की जुबानी। Operation is not like an operation which would happen on a normal day. This is a nominal surgery. It's a very minimal surgery of 1 day, like I said before. So that 1 day surgery would not really hurt so much, or it doesn't make you feel, obnoxiously bad. The only thing you need to really understand is that this then gets you out of the think or thoughtful stress, which is just like, I don't have hair, I don't feel confident, those sort of things. So if you really want to get it done, get it done. It's just 1 day of actually getting those small pain, which is not too much either. When you have this anesthesia, of course, you don't feel it. And the week after that is just something that you should rest anyway. Hi, my name is Nishan Chupawa, and I've had this journey now. The transplant was done almost a month ago, mid-November. I'm looking very confident right now. As you can see, the hair has grown. 5,000 graft has been used. So front part, temples, and of course the back area. So this is the major areas where the grafts had been used, and I'm feeling very confident at this point of time and looking forward to the 6 months period where I should be able to get this back. First PRP is also done. Looking forward to this journey. It's my first transplant, and of course I'm feeling like I should not need more, but that depends on how I should grow these hair back. The experience during the operation theatre was very interesting. There was a lot of people there, of course, doctor, nurses. But at that time, I was getting local anesthesia, and there was a very interesting time because I could hear or feel things, but I was also not really bothered by what was happening because of the anesthesia. So it was very interesting. The whole day was spent from 7 a.m. to almost 7 p.m. And of course, considering 5,000 grafts, this was a very long day for me. Got lunch break in between, and of course toilet breaks in between as well. But all day was gone really smoothly, and I had been able to sort of recover the next day as well. So that day specifically, no issues. The next day as well, it was very smooth when the bandages were removed. The day after is when I started feeling the swelling during the faces, and the whole face was covered by swellings, different left, right, and center. That also because I did not follow, like not to looking at mobile or not to work. Just a work person, so I decided not to work after that first day of feeling the swelling after that. So the very first day after the operation was done, QST team got in touch with me, and then of course every day after that they kept asking for photos and any feedback, any questions I had. So I love that the information was gathered throughout the time, and they understood these concerns, the swellings and things that I was going through. I was taking the medicines as guided by the doctor for the first 10 days. After that, there was no requirement for these medicines. Basically, the new medicine or medication will start from now till the next 6 months. So I'm looking forward to it. I've got the whole bag of medications, which is mostly the shampoos and finasteride and minoxidil. So looking forward to using that, and then I would be able to share my views on those for you. So literally got my BRP done just now, and feeling very confident because I can see the front part has no hair loss at all. So that makes me feel very confident. Only thing I saw in my photo basically that there's some shedding. So this part is visible, but compared to this part is actually making me feel a lot more confident. So this part is not lost yet. Of course, I have been told in the past that the hair loss will happen, especially eventually for the first 2-3 months. So that's why I'm not so concerned about the back area, but front part makes me feel confident, and that's really matters for me at this point. So at this point of time, no one can actually tell that I've gotten a hair transplant done. Very few people who I tell that there is actually something that can be seen. And when they look at it very, through naked eyes in a very minuscule manner, that's the only time they can tell that there is a hair transplant done. But barely anyone can tell the difference between the normal hair and the transplanted hair, which is what makes me feel very confident as well, that it's something that I needed for my career or work purposes, and then that's making me feel confident again that no one can easily tell that there are transplanted parts or normal parts as well. So I do recommend everyone who's considering this to get a transplant done, because
operation is not like an operation which would happen on a normal day. This is a nominal surgery. It's a very minimal surgery of 1 day, like I said before. So that 1 day surgery would not really hurt so much, or it doesn't make you feel, obnoxiously bad. The only thing you need to really understand is that this then gets you out of the think or thoughtful stress, which is just like, I don't have hair, I don't feel confident, those sort of things. So if you really want to get it done, get it done. It's just 1 day of actually getting those small pain, which is not too much either. When you have this anesthesia, of course, you don't feel it. And the week after that is just something that you should rest anyway. But that doesn't really make a huge difference. And then now after a month, when I'm getting my PRP done, there's a small pain as well, which is very normal again. None of these can stop someone from not getting confidence, basically. If you're feeling not confident and you don't feel like, because I need to get the surgery done or injections and stuff, that's not massive compared to, when you're looking at both the sides. So the pain is nothing in front of with the beauty and the confidence that you will get. So from here, I'll keep sharing you what are the progress, and in 6 months when I get the full hair back, I should be able to share all the photos with you. Stay tuned and keep watching QHT for getting my updates, basically. Thank you. अभी आपने पेशेंट निशांशु पाहवा की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेशेंट हेमराज की ओर, जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ट्रांसप्लांट के दिन ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स मुझे लगे थे और QST टेक्निक से ये किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। मेरा नाम हेमराज है और मेरी एज 29 है। मैं बिहार से आया हूँ और पिछले 1 महीने पहले मैंने यहाँ से QST से ही ट्रांसप्लांट करवाया था और आज मेरा फर्स्ट PRP हुआ है अभी। और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। थोड़ा सा ईचिंग की प्रॉब्लम है और शायद वो तो पहले भी था, बट मैं डॉक्टर से इसके बाद कंसल्ट करने वाला हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मेरा ट्रांसप्लांट आगे और क्राउन एरिया में हुआ था, तो क्राउन एरिया में तो सही ग्रोथ आया है और आगे का आप देख सकते हैं अभी शेडिंग फेज जो है स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, शैम्पू करते टाइम थोड़ा ज़्यादा बाल आते हैं। वो तो डॉक्टर ने भी ऑब्वियसली कहा ही था कि आपको 1 महीने से 1.5 महीने के बीच शेडिंग फेज रहेगा, उसके बाद फिर नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, देखते हैं, लेट्स होप। ये यहाँ से मेरे बाल निकाले गए थे, जिसका ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लगा है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का मेरा डिसीज़न कोई 1-2 दिनों का नहीं है, काफ़ी समय मैंने दिया इसके लिए। इसके पहले मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ करता था, जिससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो मुझे दिखा था। रही बात पैच की और विग की, तो मेरे ही एक कलीग हैं, उनको मैंने देखा था, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि 1-2 महीने के बाद आपको इसे उतारना होता है, फिर उसमें क्रीम समथिंग्स लगाना है, उसके बाद फिर से पहनना है। तो ये एक हेक्टिक शेड्यूल वाला काम हो जाता है और परमानेंट सॉल्यूशन जो है हेयर ट्रांसप्लांट है। और मैंने काफ़ी रिसर्च करके फिर QST को ही चुना और आई थिंक ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन भी रहेगा। QHT को चुनने का मेरा 2 मेन रीज़न है। एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और दूसरा YouTube के ज़रिए मैंने देखा है कई सारे ऐसे लोग आए हैं जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं थे और उनका एक्सपीरियंस, उनके जो बात का एक्सपोज़र रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और इस वजह से मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा।
वैसे तो मैं मुंबई में हूँ, वहाँ भी कई सारे क्लिनिक्स हैं, लेकिन उनका प्राइस काफ़ी हाई है और रिज़ल्ट तो खैर उनका भी अच्छा है, लेकिन प्राइस हाई होने की वजह से मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो ये क्यूएसटी जो है इन दोनों मामलों में मेरे लिए फिट बैठता है। सर्जरी से पहले कई सारे वीडियोस मैंने देखे थे, तो उसमें लोगों ने बताया था कि पेन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और एग्जैक्टली अप टू द मार्क वैसा ही हुआ। कोई भी पेन फील तो नहीं हुआ एनेस्थीसिया की वजह से। और थोड़ा बहुत जो डर रहता है ना, वो कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स के, तो वो भी मैंने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट किए थे। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका अदर पार्ट्स और ये हेयर का ट्रांसप्लांट दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरिए। और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी कोई ख़ास प्रॉब्लम तो नहीं है, और अभी तो मुझे वेट करना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने, उसके बाद ही रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये प्रोसेस होने में तकरीबन 3 दिन लगे मुझे। फर्स्ट डे तो अपॉइंटमेंट का मान लो तो थोड़े सा टाइम का होता है। सेकेंड डे आपका स्लिट मेकिंग होता है, जिसमें ऑलमोस्ट मुझे 4 आवर्स लग गए थे। और उसके बाद फिर थर्ड डे स्लिट मेकिंग से पहले आपका पीआरपी हुआ था फर्स्ट। उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट के दिन ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स मुझे लगे थे, और क्यूएसटी टेक्निक से ये किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ प्रिकॉशंस भी लेने को कहे गए थे, लाइक राइस खाने, वाइल्ड राइस खाने से मना किया गया था, और स्पाइसी फास्ट फूड, ये सब सारी चीज़ें जो कि मैंने प्रॉपरली इसको फॉलो किया है। और आगे भी अभी जब तक डॉक्टर नहीं कहते हैं, मैं इसी तरीके से कंटिन्यू रखूँगा। हाँ, अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चूँकि आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप देखें तो इंडिया का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि 20% लोग जो है इसे फेस कर रहे हैं, हेयर फॉल को। तो अगर आप लाइक कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं और स्प्रे हैं जिसे आप यूज़ करके आपको रिज़ल्ट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, एंड क्यूएसटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आई विल से, जहाँ की आप आकर के ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, कोऑपरेटिव हैं यहाँ के सारे स्टाफ्स, और अभी मेरा पीआरपी होकर के आया है, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। नो पेन ओनली गेन। 1 मंथ के बाद आप मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं क्राउन एरिया और आगे का पोर्शन पे, और मैं काफ़ी होपफुल हूँ अपने रिज़ल्ट को लेकर के, और हम आपसे फिर मिलेंगे अपने फाइनल रिज़ल्ट को लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू माई सेल्फ एंड टू क्यूएसटी बोथ। थैंक यू क्यूएसटी।
अभी आपने पेशेंट हेमराज की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेशेंट ब्रिजेश यादव की ओर। जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिफोर सर्जरी मैं जब कभी मुझे बाहर जाना होता था या किसी से मिलना होता था तो मुझे एक ऑकवर्ड सा फील होता था, क्योंकि लोगों की नज़र पहले मेरे फेस से ज़्यादा मेरे सर पे पड़ती थी और ये मुझे देख के एक झिझक सी रहती थी अंदर। लेकिन जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अंदर से गुड फील होता है, अच्छा फील होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। मैं यहाँ अपना PRP के लिए आया था। यहाँ पे मेरा आज 4th PRP थी। जैसा कि देख सकते हो आप कि मेरी आज 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं मेरे सर्जरी को, और ये सर्जरी काफ़ी पेनलेस रही है मेरे लिए और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का, और सारे स्टाफ बढ़िया थे यहाँ के। अभी तक जो भी रिजल्ट आया है मैं उससे काफ़ी खुश हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि इससे थोड़ा भी बेहतर होगा। मैंने डॉक्टर से आज कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि थोड़ा और इम्प्रूव होगा इसमें। और बाकी जो भी सिचुएशन बिफोर सर्जरी मैं जब कभी मुझे बाहर जाना होता था या किसी से मिलना होता था तो मुझे एक ऑकवर्ड सा फील होता था, क्योंकि लोगों की नज़र पहले मेरे फेस से ज़्यादा मेरे सर पे पड़ती थी और ये मुझे देख के एक झिझक सी रहती थी अंदर। लेकिन जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अंदर से गुड फील होता है, अच्छा फील होता है। हाँ, तो मैंने भी उनको बताया कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, नेचुरल ही है, मेरे ही बाल हैं, बस बैक से मेरे लिए गए हैं सर के पीछे से। और उनका भी रिएक्शन देख के अच्छा लगता है। वो भी पूछते हैं कि कहाँ से कराया था, और मैं क्यूएसटी का नाम उनको बताता हूँ। उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि जो भी उनके जानने में हो या किसी को ऐसा लगता हो कि ट्रांसप्लांट कराने के, तो मैं क्यूएसटी सजेस्ट करूँगा, वो बेस्ट है ट्रांसप्लांट के लिए। सर्जरी काफ़ी मेरी स्मूथ रही है, पेनलेस रही है। डॉक्टर और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए यहाँ पे। और अभी ट्रांसप्लांट के बाद 2-3 महीने मेरे सेटिंग फेज चला था। उसके बाद मेरे नेचुरल ग्रोथ होने लगी धीरे धीरे, और अभी जैसा देख सकते हो आपकी मेरी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से। काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ मैं इसको देख के, और मुझे अच्छा लगता है। ये जो भी ट्रांसप्लांट का डिसीजन मेरा रहा है ये इतना इजी नहीं था मेरे लिए। ये इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी थी। मैंने एक अपने यहाँ ही डॉक्टर को दिखाया था, उनसे कंसल्ट किया था। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी खाने के लिए और कुछ लोशन दिया था उन्होंने लगाने के लिए मुझे। उसको यूज़ किया मैंने, कुछ टाइम तक किया, स्टेबल था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं रिज़ल्ट। तो फाइनली मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ट्रांसप्लांट क्या है, कैसे होता है। तो मैंने कई वीडियोस देखे यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू गया मैं, और फिर मैंने क्यूएसटी यूट्यूब के थ्रू ही मुझे पता चला था उसके बारे में। मैंने फिर उनके कुछ रिजल्ट्स देखे, वीडियोस देखे, फिर एक फाइनल डिसीजन बनाया कि नहीं, ये क्लिनिक मेरे लिए ठीक है। इससे पहले भी मैंने 2-3 क्लिनिक का देखा था, पर इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ पे आया, मैं ट्रांसप्लांट कराया। और अभी आप देख भी सकते हो कि पहले की मेरी कंडीशन कैसी थी और अभी की कैसी है, और जो भी रिजल्ट आया है काफ़ी खुश हूँ मैं उसको लेके। अभी आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, जैसे कि मेरे रिग्रो हुए हैं बाल, और इससे मैं काफ़ी अभी तक सेटिस्फाइड हूँ। और डॉक्टर ने बोला है कि अभी और अच्छा आएगा इसमें, तो मैं एक्साइट हूँ उसके लिए। देखता हूँ कि आगे कितना अच्छा आता है। आफ्टर सर्जरी जो भी डॉक्टर्स ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया था उसको मैंने अच्छे से फॉलो किया था। उन्होंने मुझे मिनॉक्सिडिल लगाने के लिए दिया था, कुछ दवाइयाँ दी थी खाने के लिए, और स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि जब PRP के जस्ट बाद कि कुछ हार्ड कुछ नहीं खाना है और उसको केयर करना है, रब नहीं करना है, उसको बार बार टच नहीं करना है, ट्रांसप्लांट जहाँ हुआ उस एरिया को, और उसके साथ साथ अपना डोनर एरिया का भी केयर करना है, उसको साफ रखना है। मेडिसिन जो मेरी है वो डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि 1 महीने बाद से स्टार्ट करनी है। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद मेरी PRP भी, फर्स्ट PRP 1 महीने बाद हुई थी, और उसी टाइम से मेरी मेडिसिन मैंने 1 महीने बाद लेनी शुरू कर दी थी। और जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने दिया था मुझे, वो मेरी एग्जिस्टिंग बालों को केयर करने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए, और जो ट्रांसप्लांटेड हेयर थे मेरे वो ग्रो होने के लिए, उनको मजबूती करने के लिए, उसके लिए मेडिसिन मुझे अभी डॉक्टर्स ने बोला कि 1 साल तक अभी आप कंटिन्यू रखो, उसके बाद फिर आप आना, कंडीशन अपनी दिखाना, उसके बाद फिर सजेस्ट करेंगे। जो भी लोग हेयर फॉल से गुजर रहे हैं, जिनका हेयर लॉस हो चुका है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो क्यूएसटी क्लिनिक में ज़रूर आएँ, एक बार अपना ट्रीटमेंट लें, और उनको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर, डॉक्टर्स का बिहेवियर, सब कुछ अच्छा है। पेनलेस ये सर्जरी होती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, आपको आना है और कराना है और एक रिजल्ट अच्छा पाना है। मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। थैंक यू क्यूएसटी, थैंक यू स्टाफ, थैंक यू।
अभी आपने पेशेंट ब्रिजेश यादव की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं अपने तीसरे और आखिरी पेशेंट अफसल इमाम। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। लोगों के बीच में जाने में थोड़ा सा हिचकिचाता था। पार्टी हो गया या शादी की पार्टी हो गया या किसी का बर्थडे हो गया तो मैं जाने में थोड़ा हिचकिचाता था। अभी तो वो हिचकिचाहट थोड़ी 50% कम हो गई है। मैं और वेट कर रहा हूँ कि 6-7 महीने बाद और अच्छे रिजल्ट आए तो जो भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो बचे वो भी कॉन्फिडेंस आ जाए। मेरा नाम अफजल इमाम है। मैं झारखंड से आया हूँ, झारखंड धनबाद से। मेरी एज 30 ईयर्स है और मैं फर्स्ट PRP के लिए QST आया हूँ। 2 महीने पहले जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया था तो अभी से मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको लगभग 15 दिन जैसे धूप से बचना है और आपको इन्फेक्शन से बचना है आपको। तो वो सब मैं केयर किया 2 महीने के लिए। और अभी बीच में 1 महीने बाद ऐसा हुआ या 15 दिन बाद शायद ऐसा हुआ कि मेरे शेडिंग फेस चालू हो गए, बाल झड़ने लगे थे। पर अभी ये कंटिन्यू है। डॉक्टर ने ऐसा बताया है कि 2-3 महीने ऐसा रहते हैं, फिर आपके बाल ग्रो होने लगते हैं। ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद मेरे अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस आ गई है। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं लोगों के बीच में जाने में थोड़ा सा हिचकिचाता था। पार्टी हो गया या शादी की पार्टी हो गया या किसी का बर्थडे हो गया तो मैं जाने में थोड़ा हिचकिचाता था। अभी तो वो हिचकिचाहट थोड़ी 50% कम हो गई है। मैं और वेट कर रहा हूँ कि 6-7 महीने बाद और अच्छे रिजल्ट आए तो जो भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो बचे वो भी कॉन्फिडेंस आ जाए। घर वाले भी बोलते हैं कि पहले से तुम्हारा बाल आ गया है, पहले तो नहीं था। अभी मेरा 7 ग्रेड बाल्डनेस था तो उसके अकॉर्डिंग अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बस वेट कर रहा हूँ कि 6-7 महीने बाद और अच्छे थोड़ा रिजल्ट आए। और पहले से तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ के लोग सपोर्टिव है और डॉक्टर भी सपोर्टिव है। स्टाफ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। टाइम टू टाइम वो लोग अपॉइंटमेंट मेरे देते हैं डॉक्टर के साथ। PRP में एक्चुअली ऐसा होता है कि आपके बॉडी से ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से RBC, WBC ये प्लेटलेट्स होते हैं उसको निकालते हैं और उसी चीज़ को वही प्लेटलेट्स को हेड पर इंजेक्ट करते हैं ताकि हेयर अच्छा से ग्रोथ करे और जो थिनिंग हेयर है आपके वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो, थिक हो आपके हेयर, इसलिए PRP करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे 2 महीने हो गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट को, अभी थोड़े से ग्रो हुए हैं और डोनर एरिया भी मेरा हील हो गया पहले से। पहले तो पूरा साफ दिखता था, अभी तो डोनर एरिया भी मेरे हील हो गए हैं। अभी 6-7 महीने से डॉक्टर ने बताया कि आपको रिजल्ट देखने में 6-7 महीने जैसे लगेंगे। अभी 2 महीने हो गए, मुझे 4-5 महीने का और वेट है। अभी तक तो जर्नी सही रहा है और मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है और अभी तक तो अच्छा रहा और मैं विश करता हूँ कि आगे भी अच्छा हो और बाकियों का अच्छा हुआ तो मेरा भी अच्छा ही होगा। जैसे जैसे मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ करवा है ट्रांसप्लांट और मैंने यहाँ का रिव्यू भी सुना, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ आया और मुझे सब कुछ सही लगा। अभी तक तो जर्नी मेरा सही रहा है ट्रांसप्लांट का। और मिलते हैं अब नेक्स्ट PRP में। अभी मेरे 4 महीने बाद शायद PRP हों तो उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा और अब तक के लिए थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।